everyone. So I'm back with Act 1 Scene 3 of The Merchant of Venice. पिछले दो scenes मतलब दो videos अगर आपने नहीं देखे हैं तो you can always go through them. Link is in the description as well as the comment section. So do not waste any time. In fact, let's not waste any time. Let's begin. इसमें इस वाले scene में भी कुछ allusions हैं तो please keep your notebook and pen ready. Let's start. So this scene 3 again takes place in Venice, but this time in a public place. So first scene was in a street in Venice. Second was in Belmont, in Portia's house, in a room. And this scene takes place in Venice at a public place. This scene is very important because here Shylock is introduced. Shylock is one of the most powerful villains of literature, and his hatred for Antonio intensifies the drama here. फाइन हम लोग जो बहुत कुछ इस स्टोरी में जितने स्पाइसेस ऐड होने वाले हैं इंटरेस्टिंग होने वाली है दैट्स बिकॉज ऑफ शार्लॉक एंड हिज बॉन्ड विच ही विल सील विद एंटोनियो और वही मेन यू कैन से द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इज अराउंड विच ऑल अदर प्लॉट्स revolve. Okay, so let's start. Scene 3, Venice, a public place. Enter Bassanio and Shylock. Bassanio, Antonio's best friend. If you do not remember, Bassanio को कुछ पैसे चाहिए because he wants to go to Belmont to marry Portia. Means he wants to show to Portia's other suitors that he is a good suitor. And that's why he needs money. वो गया तो था एंटोनियो के पास बट एंटोनियो के पास पैसे हैं तो लेकिन लिक्विड कैश नहीं है. His all money is invested, right? So he said कि on my name you can go to anyone in Venice and use me as a guarantee or a surety and take whatever amount you want. So here Bassanio is with Shylock, who is a villain. So let's see what happens here. Shylock, 3,000 ducats. Well, so ducats is Venetian gold coins of Venice. So this is the amount that Bassanio wants, 3,000 ducats. See, this kind of question can always come in exam, 1 mark, 2 mark question, 1 mark question, what is the amount? And many people get confused in this because this is something which students do not pay attention to. They oversee this particular fact. Don't forget this. This is important. 3,000 ducats. Bassanio, A, sir, for 3 months. So A here means yes. Yes, sir, for 3 months. I want 3,000 ducats for 3 months. Shylock, for 3 months. Well means understand. I understand. Okay. For the which, as I told you, Antonio shall be bound. And I have told you that for this thing, Antonio will act as surety or guarantee. That he will take guarantee that I'll pay the money. Means loan is actually who is taking, Antonio is taking. We can see in that manner that if Bassanio doesn't pay the money, then Antonio will face the repercussions. So now what happened here? Shylock said, Antonio shall become bound. Well, okay, means Antonio will seal the bond. Okay. Bassanio, may you stead me? Will you pleasure me? Shall I know your answer? May you stead me? Will you help me? Meaning, I'm telling you, will you help me? Will you pleasure me? This means, will you oblige me? Shall I know your answer? Will you tell me that what is your answer? Will you give me money or not? Will you lend it to me or not? Shylock said, 3,000 ducats for 3 months and Antonio bound. Again, he is repeating, 3,000 ducats you need for 3 months and you are going to bound Antonio for that. Bassanio, your answer to that? हाँ यही condition है तो तुम मुझे दोगे, answer दो. Shylock said, Antonio is a good man. Now here, please remember, when Shylock said Antonio is a good man, he wanted to say that Antonio is a wealthy man, पैसे वाला है. But
बसैनियो ने गुड को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग कंसिडर करा. That's why Bassanio asked, have you heard any imputation to the contrary? Imputation means allegation. To the contrary मतलब something which is not. इसका अलग होना, कुछ और होना, on contrary. तो have you heard any allegation about him कि वो ऐसा नहीं है, that he is not good? So Shylock said, oh, no. My meaning in saying he is a good man is to have you understand me that he is sufficient. मेरा meaning जब मैं बोल रहा हूँ he is a good man, what I want to say is that he is sufficient. Sufficient means financially adequate person. Yet his means are in supposition. Supposition means his means. उसके पास जो पैसा है वो अभी रिस्क पर है. They are to the risks of business. Okay. He had an argosy. Argosy, I told you earlier, merchant ship. So he had an argosy bound to Tripolis. एक तो आर्गोसी उसकी ट्रिपोलिस में गई है, एक इंडीज में गई है. आई अंडरस्टैंड मोर ओवर अपॉन द रियलिटो. रियलिटो इज वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज. जैसे हमारे पास है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनके पास है रियल्टो, वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज. आई अंडरस्टैंड मोर ओवर अपॉन द रियल्टो. जब मैं रियल्टो गया था, स्टॉक एक्सचेंज गया था, वहां पे मुझे और पता लगा. ही हैड अ थर्ड एट मेक्सिको. उसकी एक शिप मेक्सिको में है और एक जो है वो इंग्लैंड में. सो 4 places. His ships are at 4 places. Tripolis, Indies, Mexico and England. And other ventures he had squandered abroad. Squandered abroad मतलब uselessly scattered. मतलब बहुत ढंग से नहीं, स्कैटर इधर उधर बिखरा हुआ है उसका बिजनेस, उसने इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ढंग से नहीं किया है. बट शिप्स आर, बट बोर्ड्स, मतलब उसने तो इधर उधर शिप्स में पैसा लगा दिया, लेकिन शिप्स क्या होते हैं? दे आर बोर्ड्स. बोर्ड्स मतलब वुडन प्लैंक्स. वुड होता ही क्या है? शिप क्या होते हैं? वुडन प्लैंक्स. मतलब लकड़ी ही तो है, डूब गई तो, चूहों ने खा लिया तो, मतलब कुछ भी हो सकता है ना. सेलर्स, बट मैन, जो उस शिप को चला रहे हैं वो लोग कौन है? वो इंसान ही तो है, और इंसान तो मॉर्टल होता है. सो मैन हियर मीन्स मॉर्टल मैन. मतलब वो तो कभी भी, उनको तो कुछ भी हो सकता है. There be land rats and water rats, water thieves and land thieves. चूहे भी होंगे, चोर भी होंगे, पानी के, जमीन के. मतलब there is a lot of risk. I mean pirates. So he means pirates. वो समुद्री डाकू. And then there is the peril of waters. Peril means risk. So then there is water का तो रिस्क है ही, water का है, wind का है, rocks का है, ये सब तो रिस्क है ही. The man is notwithstanding sufficient. But मैं फिर भी बोल रहा हूँ, nevertheless the man is acceptable. Notwithstanding means nevertheless. He is sufficient. The man is acceptable. 3,000 ducats. I think I may take this, his bond. I think, okay, I'll agree. फाइन. तो पहले उसने पूरा बोल दिया है, हाँ, उसके बारे में, एंटोनियो के बारे में, कि वो क्या सोचता है. कि एंटोनियो ने बहुत ही फुलिशली उसने अपना बिजनेस इधर उधर इन्वेस्ट, उसने पैसे करे हुए हैं शिप्स में, वो भी. और शिप्स क्या होते हैं? शिप्स तो डूब सकते हैं, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो नॉट अ गुड थिंग दैट ही हैज डन, बट ओके, ही इज समवन आई कैन एक्सेप्ट हिज बॉन्ड. Bassanio said, be assured you may. I assure you he can be a good bond. So Shylock said, I will be assured. I may, and that I may be assured, I will bethink me. मैं assure होना चाहूँगा before I sign this bond. May I speak with Antonio? So one way of having surety about this bond is that I want to speak to Antonio before I sign any bond. So Bassanio said, if it please you to dine with us, अगर आपको लगे, if you are happy with this thing, then you can have food with us, and at that time you can talk to Antonio. Shylock replied to this, yes. So yes here means what? Okay, yes का मतलब what. He's like, what? To smell pork, to eat of the habitation which your prophet the Nazarite conjured the devil into. So he's saying what? To smell pork, वो नहीं खा सकता है. Actually it's an ironical expression.
पहले इसके पहले की स्टोरी समझ लो। जीसस क्राइस्ट को इन्होंने नेजराइट बोला है शार्लॉक ने। एक पर्सन था, देयर वाज अ मैड मैन जिसके अंदर एक डेविल घुस गया था, एंड जीसस क्राइस्ट जिनको नेजराइट बोला है शार्लॉक ने, ही ऑर्डर्ड द डेविल टू लीव दैट मैड मैन्स बॉडी एंड एंटर इनटू अ हर्ड ऑफ पिग्स, कि वो पिग्स का झुंड है और उसमें जाके तुम घुस जाओ। फाइन। तो अब वो किस पिग में गया, किसको पता। तो उस टाइम से ज्यूज ने पिग खाना छोड़ दिया। फाइन। सो ही इज सेइंग टू स्मेल पोक टू ईट ऑफ द हैबिटेशन, हैबिटेशन मीन्स पिग्स बॉडी, हैबिटेट हो गया ना वो किसी डेविल का, विच योर प्रॉफिट द नेजराइट conjured means ordered the devil into। तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने, तुम्हारे प्रॉफिट ने एक डेविल को ऑर्डर करा था पिग की बॉडी में रहने के लिए। आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू एंड सो फॉलोइंग, बट आई विल नॉट ईट विद यू। So he's saying I'll do any other thing, like I will do business with you, I'll talk to you, I will sell things to you, I'll purchase things, but I'm not going to, what I'm not going to, I will not eat with you, drink with you, nor pray with you, because their religious beliefs are different. What news on the realito? Who is he comes here? So what news on Rialto? Then he asked कि कुछ नई खबर जो वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज में पता लगी, और then he looked somewhere and said ये कौन आ रहा है? Now enter Antonio. So now there are 3 characters in this scene. Bassanio. This is Signia Antonio. यही तो है Antonio. Oh, Antonio आ रहा है. Shylock aside. See, it's written in bracket aside. मतलब अब वो अपने आप से बात कर रहा है। देखो अपने आप से ये लोग जोर से क्यों बात करते हैं, क्योंकि मूवीज में तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो मन में सोच रहे हो, हमको पीछे से बैकग्राउंड में डायलॉग सुनाई दे रहा है, बट ये प्ले होते थे और प्ले स्टेज पे होते थे, तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि शार्लॉक क्या सोच रहा है। तो ऐसे में स्पॉटलाइट जो है वो शार्लॉक को फॉलो करती थी, मतलब जो भी कैरेक्टर सोचने जा रहा है उसको साइड में करते थे, स्पॉटलाइट उनके ऊपर पड़ती थी, वो जोर से अपना डायलॉग बोलते थे सो दैट एवरीवन कैन हियर दैट व्हाट दे आर थिंकिंग, एंड बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई लाइट नहीं होती थी। एंड आफ्टर दिस थिंकिंग प्रोसेस इज डन, दे यूज टू ज्वाइन द अदर कैरेक्टर्स। सो ही सेज दैट हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, जैसे कोई चोर हो जो जिसने मुझसे चोरी करी और आज देखो मेरे पास ही आया है। He said further, I hate him for he's a Christian. मैं उससे नफरत करता हूँ फर्स्ट क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। तो one thing is sure, Shylock doesn't like Antonio. One reason for it because he's a Christian. I told you their religious beliefs are different. Then, but more, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं क्यों उससे नफरत करता हूँ? For that in low simplicity, because अपनी बेवकूफ़ी में, foolishness, simplicity here means foolishness. In his foolishness, he lends out money gratis. Gratis means free of interest, and brings down the rate of usance here with us in Venice. So वो अपनी बेवकूफ़ी में वो लोगों को जब पैसा उधार देता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट वो तो लेता नहीं, और उसकी वजह से हमको भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ा। यूसेंस मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन द मनी विच वी चार्ज वी हैव टू मेक इट लो, क्योंकि हमारे पास तो फिर कोई आएगा ही नहीं, सब उसी के पास जाएंगे पैसे लेने के लिए। If I can catch him once upon the hip, catch him once upon the hip मतलब उसके इस अभी he is at the lower position, he is at disadvantage. So if I can make advantage of his disadvantage, this expression comes from wrestling. So if a person, जैसे अगर आपने देखा हो wrestling matches देखे हो, अगर एक पर्सन दूसरे को फ्रॉम द हिप पकड़ लेता है, साइड मतलब उसको लोअर पोजीशन से पकड़ लेगा, तो इट्स ईजियर फॉर दैट पर्सन उसको उठा के पटक देना, तो फेंकना, थ्रो करना। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्या करूंगा, आई विल फीड फैट द एंशियंट ग्रज आई बेयर हिम। मेरे मन में जो उसके लिए एंशियंट, बहुत पुरानी सालों से चली आ रही ग्रज है, ग्रीवेंस है, जो एक नेगेटिविटी है, हेट्रेड है, उसको आई विल फीड फैट, जैसे कि वो कोई एनिमल हो, उसको मैं अच्छे से आई विल फीड दैट। ही हेट्स आर सेक्रेड नेशन। हेयर नेशन मीन्स जूइश रेस, जो हमारा पूरा रेस है जूइश का, ज्यूज का। ही हेट्स, एंटोनियो हेट्स अस, एंड ही रेल्स, रेल्स मीन्स एब्यूसेस,
even there where merchants most do congregate means gather. तो कहाँ पर सारे merchants कहाँ इकट्ठा होते हैं? रियल्टो में. रियल्टो मैंने पहले बताया वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज, where we all merchants gather. वहां पर भी एंटोनियो अब्यूज करता है on me, मेरे बारे में खराब बातें करता है. My bargains means business deals. My well won thrift, my success, which he calls interest. तो मेरा जो बिजनेस है, जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, उन सबको वो क्या जो मतलब मेरा सक्सेस है और मेरी जो बिजनेस डील्स हैं उसको वो बहुत इंसल्टिंग वे में बोलता है इंटरेस्ट, दैट आई चार्ज इंटरेस्ट एंड आई एम नॉट अ गुड पर्सन. कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम. हम लोग कर्स होंगे, हमको तो मतलब विल गो टू हेल इफ आई विल फॉरगिव हिम. सो शार्लॉक के पास तो बहुत बड़ा मौका आ गया एंटोनियो से बदला लेने का. एंटोनियो तो खुद आ रहा है पैसा लेने के लिए. बट याद रखना शार्लॉक ने ये सब अलग जाके अपने मन में सोचा है. ओके, नाउ बसेनियो आस्क्ड शार्लॉक, डू यू हियर? डू यू हियर मीन्स तुमने सुना जो मैंने बोला, तुम हमें पैसा दोगे? शार्लॉक सेड आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर. अब शार्लॉक कुछ तो आंसर देगा ना, मैं क्या इतनी देर से सोच रहा हूँ. सो ही सेड आई एम डिबेटिंग. डिबेटिंग हियर मीन्स कैलकुलेटिंग. माई प्रेजेंट स्टोर, मेरा रेडी मनी मेरे पास कितना है. प्रेजेंट, अभी मेरे पास स्टोर में कितना पैसा है, रेडी मनी कितना है. एंड बाय द नियर गेस ऑफ माई मेमोरी, बाय द क्लोज गेस, जितना मुझे याद आ रहा है, आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस. ग्रॉस मीन्स द फुल सम, द फुल अमाउंट, जितना आपने मांगा. कितना मांगा है? 3000 ducats. इंस्टेंटली तो मैं नहीं दे सकता हूँ ऑफ फुल 3000 ducats. व्हाट ऑफ दैट? बट ठीक है, वो दैट डज नॉट मैटर. Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe, of my community, of my race, Tubal is a Jew, okay, will furnish me, will supply me. मैं Tubal से पैसा ले लूँगा, okay. But soft, soft means wait a little. How many months do you desire? कितना पैसा, कितना टाइम तुम लोगों ने बोला? And then he turned towards Antonio and said, rest your fear, good Signia, greeting. Rest your fear means he's greeting Antonio. Good Signia, your worship was the last man in our mouths. Your worship means your honor. मतलब in respect he's saying कि हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे. We were talking about you only. Antonio said, Shylock, although, albeit means although, हालांकि, I neither lend nor borrow by taking nor by giving of excess. ना तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ ना मैं इंटरेस्ट देता हूँ. मतलब एक्स्ट्रा मनी ना मैं लेता हूँ ना देता हूँ while borrowing or giving money. Yet to supply the ripe means immediate, अभी जो ताज़ा ताज़ा है, wants of my friend, I'll break a custom. I'm ready to break this custom of mine. Then he turned towards Bassanio and he said, is he yet persist? How much you would? How much you want? क्या शार्लॉक के पास उतना पैसा है? Shylock said, hey, yes, 3000 ducats. Antonio said, and for 3 months. Shylock said, I had forgot. 3 months, you told me so. हाँ, आपने बोला तो था तुम लोगों ने 3 months के लिए चाहिए. Well then, your bond, and let me see, but hear you. Me thought you said you neither lend nor borrow upon advantage. और तुमने ये भी तो बोला कि I think, me thought means I think or it seems to me. ना तो तुम पैसा देते हो ना लेते हो with interest. ये तो अभी बोला. Antonio said, I do never use it. Yes, I have never done it. ना तो मैं पैसा लेता हूँ ना देता हूँ with interest. Shylock replied, when Jacob grazed his uncle Laban's sheep. अब तुम लोग बोलोगे बाप रे ये क्या आ गया अचानक से, हम तो इंटरेस्ट की बातें कर रहे थे. तो तो अब पहले स्टोरी का टाइम, भूल जाओ मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं. एक पर्सन था जिसका नाम था अब्राहम के बेटे का नाम था आइजैक और आइजैक के बेटे का नाम था जेकब. फाइन. अब्राहम कौन है? अब्राहम इज द फाउंडर ऑफ जूइश रेस, जिन्होंने जूइश रेस स्टार्ट करी थी, ज्यूस को. ठीक है, तो अब्राहम, आइजैक, जेकब. नाउ
जो प्रॉपर्टी थी वो जेकब को मिलती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जेकब का एक बड़ा भाई था इजाऊ। सो इजाऊ एक और पर्सन आ गया, फाइन। इजाऊ जो है वो एल्डर है तो उसको सब प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, बट जेकब की मदर ने ट्रिक प्ले करी और उसकी वजह से सारी प्रॉपर्टी जेकब को मिल गई। नाउ देयर इज वन मोर स्टोरी। जेकब जो था वो अपने अंकल लेबन के पास गया था टू सर्व हिम, टू वर्क फॉर हिम, और उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड साइन हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ। जितने भी लैम्ब, जितने भी लैम्ब्स पैदा होंगे जिनमें भी स्ट्राइप्स और स्पॉट्स होंगे, वो सारे जेकब को मिल जाएंगे एज हिज सैलरी, और उसका जो भी उसने मनी उसने कमाया है काम करके, वो सब वो सारे, और भी, और कोई नहीं, वही लैम्ब जिनमें स्ट्राइप्स या फिर स्पॉट्स होंगे। ओके, ये था अग्रीमेंट। लेकिन कैसा बोलते हैं कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, वो जिसको देखती रहती है बार बार, जो चीज़ें देखती है उससे बच्चा इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर ब्रीडिंग सीजन जब स्टार्ट हुआ तो जेकब ने वुडन रॉड्स प्लेस कर दिए, वुडन रॉड्स, और इस तरह से प्लेस करे कि उनके शैडो जो थे वो प्रेग्नेंट शीप के ऊपर पड़ती थी। तो कंटिन्यूएशन में वो शीप एक दूसरे को जब देखते थे तो लाइंस देखते रहते थे, और इसकी वजह से जितने भी लैम्ब्स पैदा हुए सब में स्ट्राइप्स थी। फाइन, ऑलमोस्ट ऑल, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट ऑलमोस्ट ऑल द लैम्ब्स ईदर हैड स्ट्राइप्स और स्पॉट्स। तो जेकब को तो बहुत फायदा हो गया था, स्मार्ट मूव, राइट? लेकिन ये सब शैलोक ने क्यों बताया? अब स्टोरी तो समझ में आई, अब वापस चलते हैं। When Jacob grazed his uncle Laban's sheep, this Jacob from our holy Abraham was the third processor. He was the third. तो पहले तो शैलोक ने बताना शुरू करा, when Jacob grazed his uncle Laban, जब जेकब ने अपने अंकल लेबन की शीप को ग्रेस करा, और फिर उसने बताया जेकब कौन है। जेकब फ्रॉम आवर होली अब्राहम वाज द थर्ड प्रोसेसर, थर्ड, उसको थर्ड पर्सन था टू इन द लाइन। यस, ही वॉज द थर्ड। उसी को तो मिली थी सारी प्रॉपर्टी, इजाऊ को तो नहीं मिली, बताया था मैंने। और ब्रैकेट में लिखा है एज हिज वाइज मदर रॉट इन हिज बिहाफ। रॉट मीन्स स्कीम्ड, उसकी वाइज मदर ने उसके बिहाफ पे स्कीम बनाई थी। एंटोनियो बोला, एंड व्हाट ऑफ हिम, व्हाट्स द पॉइंट? हम तो ये बात कर रहे थे ना कि मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता हूँ, ये कहाँ से बात आ गई? डिड ही टेक इंटरेस्ट? तुम ये बोल रहे हो कि वो इंटरेस्ट लेता था। Sherlock said, no, not take interest. Not as you would say, directly interest. Mark what Jacob did. इंटरेस्ट नहीं, एटलीस्ट वैसे नहीं जैसा तुम सोचते हो इंटरेस्ट होता है। अच्छा, ध्यान से सुनो जेकब ने क्या किया था। When Laban and himself, Laban and Jacob were compromised here means agreed, that all the inlings क्या होता है? लैम्स के बच्चे, which were streaked and pied, वो जो भी बच्चे जिनके ऊपर स्ट्राइप्स होंगे या स्पॉट्स होंगे, शुड फॉल एज जेकब्स हायर, वो सब जेकब को मिल जाएंगे। दिस वॉज अ वे टू थ्राइव मीन्स सक्सीड, ये एक तरीका था जीतने का। एंड ही वॉज ब्लेस्ड, एंड ऑब्वियसली ही वॉज ब्लेस्ड। एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग, थ्रिफ्ट मीन्स प्रॉफिट, इज ब्लेसिंग इफ मेन स्टील इट नॉट। तो उसने बोला प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में आए, अगर जेकब ने ये किया और जेकब को शीप मिल गए तो उसको प्रॉफिट ही मिला ना, और प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में आए, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स नॉट रॉन्ग। तो शायलोक एक तरह से क्या बोलना चाह रहा है कि मैं भी तो प्रॉफिट ही कमाता हूँ तो इट्स अ ब्लेसिंग, तो मुझे क्यों इतना गलत समझते हो? एंटोनियो सेड दिस वॉज अ वेंचर सर दैट जेकब सर्व्ड फॉर, दिस वॉज एन एंटरप्राइज। जेकब तो वहाँ पे सर्वेंट था ना, वो कोई पैसा थोड़ी ना देता था जो इंटरेस्ट पे लेगा। मतलब ही वॉज नॉट अ मर्चेंट, ही वॉज अ सर्वेंट। अ थिंग नॉट इन हिज पावर टू ब्रिंग टू पास, मोर ओवर उसके पावर में कुछ नहीं था। मतलब जो लैम्ब पैदा हुए, ही ओनली ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द मदर्स हु वर प्रेग्नेंट, हाँ, अदरवाइज उसके हाथ में थोड़ी ना था। अब वो जो लैम्ब पैदा हुए वो तो भगवान की देन है, हाँ। But swayed and fashioned by the hand of heaven, so it was controlled and shaped by the hand of God. ये तो भगवान के हाथ में था, उन्होंने किया। He wanted Jacob to have these many lambs. Was this inserted to make interest good? ये जो तुमने insert किया बीच में जेकब का
किस्सा जो तुमने बीच में डाला है, आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट इंटरेस्ट इज गुड? क्या तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो? और इज योर गोल्ड एंड सिल्वर ईव्स एंड रैम्स? तुम्हारे जो गोल्ड एंड सिल्वर है, तुम उनको ये लैम्ब और शीप समझते हो क्या, कि वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे? जे शाइलॉक सेड, आई कैन नॉट टेल, आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट, बट नोट मी सिग्नियर, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बट आई ट्राई टू make as much money as possible. I try to multiply my money. Antonio said, mark you this, Bassanio. Bassanio में इस बात का ध्यान रखना, द डेविल, जो खराब लोग होते हैं, वो होली बुक्स को, वहाँ की स्टोरीज को भी यूज कर सकते हैं टू जस्टिफाई देयर पर्पस. मतलब शाइलॉक जो है, अकॉर्डिंग टू एंटोनियो, एक गलत काम कर रहा है इंटरेस्ट लेके, और अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए वो बाइबल को यूज कर रहा है. बाइबल जो क्रिश्चियंस की होली बुक है, मतलब एंटोनियो की होली बुक है. एन इविल सोल प्रोड्यूसिंग होली विटनेस इज लाइक अ विलन विद अ स्माइलिंग चीक. सो द पीपल हु डज, द पर्सन हु डज दैट इज लाइक एन इविल सोल, जो होली विटनेस तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दे आर लाइक विलन्स हु स्माइल एट यू. ओके. अ गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट. ये लोग एक ऐसे एप्पल की तरह होते हैं जो बाहर से तो बड़े अच्छे फ्रेश दिखते हैं, लेकिन इनसाइड एकदम सड़ चुके हैं, रॉटन हो चुके हैं. ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ. सो ही सेड कि देखो, झूठ जो होता है, फॉल्सहुड होता है, जो लायर्स होते हैं, वो बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं. ओके. सो एंटोनियो इज सेइंग कि ये लोग जो स्क्रिप्चर्स का बहाना लेते हैं अपने जस्टिफाई करने के लिए एक्ट्स को, दे आर लाइक विलन. अंदर से तो उनकी इंटेंशंस खराब है, बट दे विल स्माइल एट यू. दे आर लाइक एप्पल जो अंदर से सड़ चुका है, लेकिन तुम्हें बाहर से एकदम अच्छा दिखेगा. और फिर वो उसको और इंसल्ट करने के लिए बोलता है कि देखो, इज लाइक अ जो लायर्स होते हैं वो कितने अच्छे अपीलिंग दिखते हैं बाहर से. ओके. सो नाउ Shylock said, 3,000 ducats. 'Tis a good round sum. देखो, शायलोक को कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी ये जो एंटोनियो ने इतनी इंसल्ट करी अभी. 3,000 ducats, 'tis a good round sum. 3 months from 12, then let me see the rate. So he said 3,000 ducats तो राउंड फिगर में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. 3 months from 12, मतलब 12 months में से, एक साल में से, यू आर आस्किंग फॉर 3 months. लेट मी सी द रेट, क्या इंटरेस्ट बैठता है. एंटोनियो, वेल शार्लॉक, शेल वी बी बिहोल्डिंग टू यू. बिहोल्डिंग मतलब indebted, means are we going to be indebted to you, means are you going to lend us the money. ठीक है. Shylock said, Signia Antonio. ये जो डायलॉग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज इसके बेसिस पर हमको पता चलता है कि एंटोनियो ने शार्लॉक के साथ क्या क्या किया, एंड व्हाई शार्लॉक हेट्स क्रिश्चियंस. ओके. Signor Antonio, many a time and oft. Oft means often. Often, अक्सर ऐसा हुआ है. In the realito, you have rated me. Rated means abused. You have abused me in the stock exchange about my monies and my usences, about my money, my business deals, about the interest which I take. You have insulted me a lot. Still have I borne it with a patient shrug. Shrug कैसे करते हैं? This is shrug. So मैं ऐसे ही करके निकल जाता था with a patient. I always have borne patience. Why? For sufferance is the badge of our tribe. Sufferance here means long suffering is the badge of our tribe. मतलब ये characteristic है, badge. This is the characteristic of our race. And spit upon my Jewish gabardine. Gabardine, it's like a long loose cloak. वो जो पहले के लोग पहनते थे, पीछे लंबा सा कपड़ा होता था, उसे बोला है gabardine. And spit upon my, अच्छा एक लाइन रह गई बीच में, सॉरी. You call me misbeliever, cut throat dog. तुमने क्या क्या करा है? तुमने सबसे पहले मुझे मिसबिलीवर बोला, मतलब वो जिस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते. यू हैव कॉल्ड मी अ कट थ्रोट डॉग, मतलब मर्डरस, मर्सीलेस डॉग.
एंड स्पिट अपॉन माई जूइश गैबेडाइन, तुमने मेरी ड्रेस के ऊपर बताया, वो जो क्लोक होता है पीछे, उसके ऊपर यू हैव स्पैट, उसके ऊपर थूका भी है तुमने। एंड फॉर ऑल यूज ऑफ दैट विच इज माइन ओन, और क्यों? क्योंकि मैं जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ, जो भी मैं अपने मनी को कर रहा हूँ, वो मेरा अपना है, मैं किसी से चुरा के तो नहीं कर रहा हूँ। वेल देन इट नाउ अपियर्स यू नीड माई हेल्प, अभी ऐसा क्या दिख रहा है, मतलब इट सीम्स टू मी दैट यू नीड माई हेल्प। गो टू देन, go on. You come to me and you say, Shylock, we would have monies. आओ मेरे पास और अब तुम लोग बोलो. You should say that you need money. You say so. You that did void your riem upon my beard. Again it means spit. Void your riem means तुमने मेरी beard के ऊपर भी थूका था. तुम वही हो जिसने मुझ पे इतनी बार you have spat upon me. And foot me as you spurn a stranger cur over your threshold. Foot का मतलब यहाँ है kicked and stranger cur का मतलब है stray dog. Over your threshold, अपने घर से तुमने मुझे किस तरह से लात मार के किक करके निकाला था. Money is your suit, but right now this is your request. Suit here means request. Okay. What should I say to you? Should I not say hath a dog money? मैं क्या बोलूँ अब तुमको तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए? क्या मुझे आज नहीं बोलना चाहिए कि डॉग्स के पास कोई पैसा होता है क्या? मैं तो डॉग हूँ ना, सो हाउ विल आई हैव मनी? इज इट पॉसिबल अ कर कैन लेंड 3000 टिकट्स? क्या कोई डॉग 3000 लुकेट्स किसी को लोन में दे सकता है? और शैल आई बेंड लो, और या फिर इतना ही नहीं, मतलब या तो मैं ये करूं या तो तुमसे ये बोलूं, और या फिर मैं झुक जाऊं तुम्हारे सामने और फिर एंड इन अ बॉन्ड मैन्स की मीन्स वॉइस ऑफ अ स्लेव, स्लेव की वॉइस में धीमी आवाज में बोलूं विद बेटेड ब्रेथ, एंशियस ब्रेथ के साथ एंड विस्परिंग हम्बलनेस, हम्बलनेस के साथ धीमे से विस्पर करके बोलूं, फेयर सर, you spit on me on Wednesday last. You spurned me such a day. Another time you called me dog, and for these courtesies I lend you thus much monies. क्या बोला उसने? उसने बोला, गुड सर, आपने वेंसडे पर तो मुझ पे स्पिट करा था, उसके बाद आपने एक दिन मुझे पुश करा था, किक मारी थी, उसके बाद आपने एक दिन मुझे डॉग भी बुलाया था, और आपने मेरे ऊपर जो ये इतने अच्छे अच्छे इतने सारे फेवर्स करे हैं, उसके बदले में मैं आपको मनी दूंगा. शार्लॉक ने सरकास्टिक टोन में बोल दिया जो उसे बोलना था. तो शार्लॉक ने बोला, शार्लॉक ने अपनी सारी बात बता दी दैट व्हाई ही इज सो एंग्री विद एंटोनियो. उसने बोला कि बहुत बार एंटोनियो ने उसको इंसल्ट करी है, सब लोगों के सामने उसको कर्स करा है, उसको अब्यूज करा है फॉर द वे ही गिव्स चार्जेस इंटरेस्ट वाइल लेंडिंग मनी टू पीपल. किस तरह से वो उसने उसको मिसबिलीवर बुलाया, उसको कट थ्रोट डॉग बुलाया, उसकी ड्रेस के ऊपर ही हैज पैट, उसने उसकी बियर्ड के ऊपर ही हैज पैट, उसने उसको किक करके अपने घर से बाहर निकाला है जैसे हम किसी स्ट्रे डॉग को निकाल देते हैं. तो इन सब के बदले में ही सेइंग दैट या तो भाई मैं आपको बोलूं कि अगर मैं तो तुमने तो मुझे डॉग मानते हो ना, तो डॉग के पास तो पैसा होता ही नहीं है, तो हाउ विल आई गिव यू मनी? और या फिर मैं एकदम स्लेव वाली टोन में आऊँ, विस्पर करके बोलूँ धीरे से, सर ले लीजिए पैसा, आपको जो भी चाहिए. ओके. सो एंटोनियो सेड, आई एम एज लाइक टू कॉल दी सो अगेन. आई एम जस्ट एज लाइकली टू कॉल दी सो अगेन. यू, दी मीन्स यू. देयर आर ब्राइट चांसेस कि मैं तुमको फिर से ये सब बुलाऊंगा. मतलब एंटोनियो हैज एक्सेप्टेड कि उसने ये सब करा भी है और बोला भी, और वो तो कह रहा है मैं आगे भी बोल सकता हूँ. टू स्पिट ऑन दी अगेन, मैं फिर से तुम्हारे ऊपर आई विल स्पिट, मैं तुम्हारे ऊपर थूकूंगा. टू स्पर्न दी टू, मैं पुश भी करूंगा तुमको. स्पर्न मीन्स टू पुश. इफ दाउ विल्ट लेंड दिस मनी, लेंड इट नॉट एज टू दाई फ्रेंड्स. अगर तुम मुझे ये मनी लेंड करते हो, डू नॉट लेंड इट टू मी एज आई एम योर फ्रेंड. फॉर वेन डिड फ्रेंडशिप टेक अ ब्रीड फॉर बैरन मेटल ऑफ हिज फ्रेंड. कि क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो कभी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं. अ ब्रीड फॉर बैरन मेटल
is for used for interest, but lend it rather to thine enemy. मुझे इस तरह से पैसे लेंड करो जैसे कि मैं कोई तुम्हारा एनिमी हूं. Who, if he break, thou mayest with better face exact the penalty. क्योंकि अगर मैं बाई चांस इफ आई विल नॉट बी एबल टू पे यू ऑन टाइम, तो तुम अच्छे से पेनल्टी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड की तरह दोगे तो कर नहीं पाओगे, तो एनिमी की तरह करो. Shylock, why look you how you storm? See how you get angry. I would be friends with you and have your love. Forget the shames that you have stained me with. Supply your present wants and take no doit of usance for my monies, and you will not hear me. This is kind I offer. So Shylock said, देखो how angry you have got. I would be friends with you and have your love. मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा एंड आई विल एक्सेप्ट योर लव. फॉरगेट द शेम्स दैट यू हैव स्टेन. तुमने मुझे जिस तरह से डिसग्रेस करा है, तुमने जिस तरह से मुझे सबके सामने इंसल्ट करा है, मैं सब भूल जाऊंगा. सप्लाई योर प्रेजेंट वॉन्ट्स. बस ये बताओ अभी तुम्हें क्या चाहिए. एंड टेक नो डॉइट. मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लूंगा. एंड यू विल नॉट हियर मी. दिस इज काइंड आई ऑफर. ये है जो मैं ऑफर कर रहा हूँ. नाउ सी, दिस इज काइंड आई ऑफर. यहाँ पे काइंड के 3 मीनिंग हो सकते हैं. फर्स्ट, इट इज द काइंडनेस दैट आई ऑफर. फर्स्ट मीनिंग. सेकेंड, सब लोगों को अपने तरह के लोग पसंद होते हैं, तो मे बी ही इज सेइंग दैट बिकॉज यू डोंट चार्ज इंटरेस्ट, सो लाइक यू आई विल ऑल्सो नॉट, सो काइंड in that way I will also not charge interest. Third, we return favors in kind. सुना होगा ना, kind और cash, in kind और cash. तो we return favors. तो मे बी जो एंटोनियो ने अभी तक उसके साथ बिहेव करा, Shylock's intentions are that he will also return him the same. Okay, let's go further. Bassanio. This were kindness means this is the kindness that you are showing. Shylock, go with me to a notary. This kindness will I show. Go with me to a notary. Seal me there your single bond, and in a merry sport, if you repay me not on such a day, in such a place, such sum or sums as are expressed in the condition, let the forfeit be nominated for an equal pound of your fair flesh, to be cut off and taken in what part of your body pleased me. उसने बोला, शायलॉक ने बोला, ठीक है मेरे साथ एक नोटरी ऑफिस में चलो, मतलब जहाँ पे प्रॉपर हम लोग बॉन्ड साइन करेंगे. सील मी देयर योर सिंगल बॉन्ड, मतलब ओनली वन पर्सन साइन इज रिक्वायर्ड. एंड एंटोनियो विल साइन एंड आई विल साइन. डेफिनेटली वो शायलॉक तो करेगा ही, वहां से तुम्हारी तरफ से एंटोनियो विल साइन. एंड इन अ मेरी स्पोर्ट, और एज अ जोक हम लोग एक कंडीशन रख लेते हैं. इफ यू रीपे मी नॉट ऑन सच अ डे, इन सच अ प्लेस, such sum or sums as are expressed in the condition. अगर जो दिन हम डिसाइड करते हैं उस दिन पर तुम हमें पैसे नहीं देते हो, जो प्लेस डिसाइड होती है वहां पर पैसे नहीं देते हो, और जितना पैसा डिसाइड हुआ है वो नहीं देते हो, देन लेट द फोरफीट बी नॉमिनेटेड. तो मतलब जो पेनल्टी है वो क्या होगी, फोरफीट इज पेनल्टी, फॉर एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लैश. मैं तुम्हारा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लूंगा. अरे बाप रे. टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन वॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज्ड मी. प्रॉपरली कट करके आई विल टेक 1 पाउंड ऑफ योर फ्लैश, और उस एरिया से जहां से मैं चाहता हूं बॉडी के. ओके, शायलॉक ने ये जोक वे में बोला कि जोक की तरह हम इसमें डाल देते हैं, बट ये है तो डेंजरस. Antonio, content, I faith, I am satisfied. Content means I am satisfied. I'll seal to such a bond and say there is much kindness in the Jew. मैं इस बॉन्ड को सील भी करूंगा, मतलब इसको साइन भी करूंगा, और बाद में ये भी बोलूंगा कि ज्यूज बहुत काइंड होते हैं. Bassanio, you shall not seal to such a bond for me. I will rather dwell in my necessity. तुमको मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है, मैं जिस कंडीशन में हूं आई एम ओके. Antonio, why? Fear not, man, I will not forfeit it. एंटोनियो बोल रहा है, क्यों डर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पेनल्टी पे नहीं करूंगा. विद इन दीज 2 months, दैट्स अ मंथ बिफोर. 3 महीने के लिए हम इससे टाइम ले रहे हैं ना, मेरे तो 2 महीने में ही क्या होगा. आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस
3 times the value of his bond. Thrice 3 times. 3 times नहीं है, thrice 3 times. So 3 into 3 is 9 times पैसा मेरा वापस आने वाला है. Bond अभी से 2 महीने में ही. So Shylock said, "Oh Father Abraham, what these Christians are." क्या कौन लोग हैं ये Christians, हाँ? The thoughts of whose own heart feelings teaches them suspect the thoughts of others. ये लोग खुद इतने मीन होते हैं, सेल्फिश होते हैं कि इनको दूसरों की फीलिंग भी खराब ही लगती है. प्रे यू टेल मी दिस. अच्छा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक बात बताओ. इफ ही शुड ब्रेक हिज डे, इफ उसने जिस दिन का हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अगर उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, मुझे मनी नहीं रिटर्न कर पाया, वॉट शुड आई गेन बाय द एग्जैक्शन ऑफ द फोरफिचर. मुझे क्या मिलेगा बताओ उस दिन, मुझे क्या प्रॉफिट मिलने वाला है. अ पाउंड ऑफ मैंस फ्लैश, यही तो मांगा है मैंने, 1 pound ऑफ मैंस फ्लैश, और क्या मांगा है. टेकन फ्रॉम अ मैन इज नॉट सो एस्टिमेबल, प्रॉफिटेबल नीदर. इसका तो मैन के 1 pound ऑफ फ्लैश की तो कोई कीमत ही नहीं होती है, एज फ्लैश ऑफ मटन्स, बीफ्स और गोट्स. आई से टू बाय हिज फेवर आई एक्सटेंड दिस फ्रेंडशिप. इफ ही विल टेक इट सो, इफ नॉट एड्यू. उसने बोला कि ये जो मटन है, बीफ है, गोट है, उसकी तो कोई वैल्यू भी होती है, ह्यूमन फ्लैश की क्या वैल्यू है. आई एम डूइंग दिस ओनली एज अ फेवर. ये एक तरह की फ्रेंडशिप है विच आई एम एक्सटेंडिंग. If he will take it, all right. If he will take it, so means all right. If not, adieu means goodbye. लोगे तो ठीक है, और नहीं लेना है तो भाई गुड बाय. एंड फॉर माई लव आई प्रे यू रॉन्ग मी नॉट. मुझे गलत मत समझो. डू नॉट बी अनजस्ट टू मी फॉर ऑफरिंग दिस एक्ट ऑफ लव. दिस इज आई एम डूइंग आउट ऑफ लव. 1 pound ऑफ फ्लैश उसने आउट ऑफ लव मांगा है. ओके. एंटोनियो, yes Shylock, I will seal unto this bond. Don't worry, मैं करूँगा seal. Shylock said, then meet me forthwith at the notary office में, let's meet. Give him direction for this merry bond. merry मतलब amusing, humorous bond. हम तो मजाक करने वाले हैं ना. तो give him direction, जो वहाँ पे जो notary officer होगा उसको बताओ. And I will go and purse the ducats straight. और मैं जाता हूँ, मैं ड्यूकेट्स अरेंज करता हूँ इन माई पर्स, मतलब फटाफट से जाके सी टू माई हाउस, अपने घर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ. लेफ्ट इन द फियरफुल गार्ड, राइट नाउ इट इज इन हैंड्स ऑफ अनसेफ वॉच, मतलब ऑफ एन अनथ्रिफ्टी नेव. अनथ्रिफ्टी नेव मीन्स इररिस्पॉन्सिबल सर्वेंट. नेव मीन्स सर्वेंट. तो राइट नाउ माई होम इज गार्डेड बाय एन इररिस्पॉन्सिबल सर्वेंट. तो मेरा घर सेफ नहीं है, तो मैं वहाँ देख कर आऊँगा. एंड प्रेजेंटली आई विल बी विद यू. प्रेजेंटली मीन्स सून. सून आई विल बी विद यू. एंटोनियो सेड, हाई दी जेंटल ज्यू, मेक हेस्ट. हाई दी मीन्स मेक हेस्ट, जल्दी करो. जेंटल ज्यू. नाउ Shylock exits and Antonio said, the Hebrew will turn Christian, he grows kind. ये जो हेब्रू है, मतलब ज्यू, मतलब शैलोक, ये बहुत जल्दी क्रिश्चियन बन जाएगा, ये तो बड़ा काइंड होता जा रहा है. सी अगेन इट्स लाइक सेटायर, इट्स लाइक अ कॉमेंट कि क्रिश्चियन है तो काइंड होगा, और ज्यू हो तो काइंड नहीं है. अब वो काइंड हो रहा है तो वो क्रिश्चियन बनेगा. गेटिंग इट. बसैनियो, आई लाइक नॉट फेयर टर्म्स एंड अ विलन्स माइंड. मुझे ये समझ में नहीं आता है, मतलब इट्स लाइक काइंड वर्ड्स ऑफर्ड बाय अ विलन्स माउथ. तो आई एम नॉट गेटिंग दैट. एंटोनियो सेड, कम ऑन, इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे. डिसमे मीन्स नो रीजन फॉर फियर, हमें डरने की कोई बात नहीं है. माई शिप्स कम होम अ मंथ बिफोर द डे. जो हम लोगों ने दिन डिसाइड करा है उससे 1 महीना पहले ही मेरे शिप्स लौट आएंगे. हाँ, तो कैसा लगा ये वाला सीन, समझ में आया अच्छे से. हमारा एक्ट 1 भी खत्म हो गया है. कल मैं एक्ट 1 की एक समरी पोस्ट करूंगी कि अगर पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं समझना है तो एज अ समरी यू कैन अंडरस्टैंड. बट आई होप यू आर गेटिंग इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज hit the like button, subscribe to my channel and share it with your friends. It will be useful to them as well. This is Anushri signing off. Thank you.